Uh, Let's start. Yes, Mr. Rishabh Mishra. First of all, please introduce me yourself. Hello, good afternoon. I am Rishabh Mishra. I am from uh, NIT Raipur. I have done my BTech from NIT Raipur in 2023 in chemical engineering. After that, I have joined PwC, one of the big four technology consult, and I'm right now working in SAP domain as a developer. I've also done my research internship from IIT Kharagpur during the time of my studies in college. And apart from that, I am a humble, positive thinking guy who never give up. So you're already in the non-core domain, like you are SAP developer, right? So why do you want to Yeah. be? So why do you want to come in the core segment? The thing is that I'm more interested towards the core segment. That's why I'm switching from non-core to core side. I'm doing good here, but still I want to work on the research field. So you want to work on the research. So why don't you join MTech or PhD? Like there, the research work is very good. Why? And you will be the proud of the India. Like in the PhD and MTech segment, MS segment, there are very less number of students, right? So you can do better there as compared to in the nuclear segment in the BARC or an NPCIL. Actually, I specifically I want to work on the nuclear segment. According to the I am from the childhood, I'm more interested towards the Large Hadron Collider and all those things. So that's why I chose BARC over all those options. Okay, fine. So what do you understand by nuclear, like nuclear physics or something? Like why do you want to do this segment only, this part, and not the others part? Because it is the most basic part. If you look into everything, everything is composed of atoms. This is the last thing that we want to know. And if we break that atom, then we are going to understand what is going on a bigger or bigger picture. Light आ गया क्या sir? Actually, ठीक ठीक. just give me a second, let me charge. Give, give me a second, guys. ओके फाइन. तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि बार्क के बारे में आप क्या जानते हैं, लाइक बार्क का कैसा वर्किंग होता है, क्या होता है ना? पावर जनरेशन की बात तो करते हैं, तो पावर जनरेशन वहां पे कैसा होता है, थोड़ा इसके बारे में आपको आइडिया है? नहीं, इसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं. मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया फाइन. राइट नाउ, क्योंकि मुझे मुझे टाइम उतना मिलता नहीं है बैलेंसिंग ऑल दोस थिंग्स. सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन द टेक्निकल पार्ट. तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूरेनियम 235, यूरेनियम 237 का यूज करते हैं, एंड थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल एंड कोल वगैरह का यूज करते हैं ना. तो व्हाई दिस इज मोर बेटर देन दिस थर्मल? न्यूक्लियर पावर प्लांट इज मोर बेटर देन थर्मल पावर प्लांट, व्हाई? सिंपल सा इक्वेशन है सर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यहाँ पे छोटा सा मास का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर देता है एज कम्पेयर टू द कोल. उसमें बल्क अपना कोल यूज होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, लेस एनर्जी. यहाँ पे छोटा सा यूरेनियम यूरेनियम आइटम अपने लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर देगा. सो दैट्स वाई न्यूक्लियर सेक्टर. बस इसमें डिस्पोज करने का थोड़ा प्रॉब्लम है. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज मोर बेनिफिशियल. Okay, very good. Okay, so what are your favorite subjects, like what you have chosen? I have chosen heat transfer, fluid mechanics, CRE, and mass transfer. Right now, I'm this interview. I'm looking for fluid mechanics. You want to give fluid mechanics? Huh. Fine. Okay, so define pump. Pump is a machine which actually is used to increase the pressure or to increase the flow rate of a particular fluid that is flowing through it. Okay, just ठीक है. तो मुझे बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स क्या हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स? बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक डायनेमिक पंप होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है. डायनेमिक पंप में मोस्ट यूजली पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप. ऑन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप in which we are using piston plunger or a diaphragm to transport the liquid or generate a pressure there. Why reciprocating pump is not used? Reciprocating pump is also there. I'm not like एकदम exact मुझे नहीं पता कितने कितने हैं. ये पिस्टन पंप, डायफ्राम पंप और प्लंजर पंप ये किसके अंदर में आते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप कैटेगरी के अंदर में आते हैं या किस, कहाँ पे आते हैं ये, या अलग है, रेसिप्रोकेटिंग पंप से अलग है ये? रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के अंदर ही आएंगे, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के ही अंदर. बोथ आर काइंड ऑफ सेम थिंग. ये ये डिफ- ये क्या है, रोटोडायनामिक पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, लाइक? यस.
जो अपना डायनेमिक और पॉजिटिव है, या फिर Yes, yes, that only. डायनेमिक और, Dynamic and positive displacement pump. हाँ वो एक जो है वो अपना फ्लो रेट के लिए यूज होता है बेसिकली, ज्यादा अपने को फ्लो रेट बनाना रहता है, तो एज कम्पेयर टू हेड, सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपैरिजन में अपना हेड ज्यादा डेवलप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा। सो दैट इज द थिंग, एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड वी आर यूजिंग। कभी कभार स्लरी या फिर ज्यादा विस्कस फ्लूइड होता है तो उसकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं यूज कर सकते। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट एक्चुअली डिफाइन। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग स्ट्रेनर यूज करते हैं इन द सक्शन हेड, राइट, इन द सक्शन पाइप। क्यों करते हैं हम लोग स्ट्रेनर को यूज? ट्रेनर यूज करते हैं सर, आइडिया नहीं है इस ट्रेनर का, टू बी आपके घर एग्जैक्ट। में पंप होगा ना, हाँ हाँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होगा। हाँ हाँ। तो स्ट्रेनर तो लगा ही होगा, उसके नीचे में लगा होता है। वो बेस रहता है, वो है क्या स्ट्रेनर? स्ट्रेनर कभी ऐसे स्ट्रेनर का देखा क्या नहीं काम मैंने। होता है? स्ट्रेनर का क्या काम होता है, बेसिकली बताइए, स्ट्रेनर का क्या काम होता है? आपके घर में आप चाय छानते होगे या फिर कुछ भी छानना होगा आपको, स्ट्रेनर का क्या काम होता है? स्ट्रेनर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा सर, है क्या? मैंने कभी सुना स्ट्रेनर, नहीं। यू डोंट नो स्ट्रेनर? नहीं। दैट्स वेरी ऑकवर्ड। ओके, जस्ट गूगल आउट दैट वर्ड। ठीक है, आई विल बी क्लोजिंग दैट, फाइन फाइन। ओके, दूसरी चीज, डिस्चार्ज वॉल्व, डिस्चार्ज पाइप जो होता है वहां पे एनआरवी लगा, नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगा होता है इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाई दैट इज यूज्ड? और सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज पाइप में जो लगा रहता है, अगर हम लोग पंप को ऐसे कनेक्ट करते हैं एज अ टैंक के नीचे साइड में, तो अगर उसका हाइट बढ़ते जाएगा तो एक टाइम के बाद जो टैंक है वो बैक फ्लो मार देगा अपने पंप में ही। सो उसको रोकने के लिए हम लोग वहां पे लगा के रखा हुआ है, डिस्चार्ज में अगर लगा हुआ है तो। अगर स्टार्टिंग में लगा हुआ है तो प्राइमिंग के लिए यूज के लिए लगा हुआ है, और वहां पे लगा हुआ है तो बैक फ्लो के लिए लगा हुआ है। चलिए, फाइन। आपके पास में प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जस्ट लेट मी कनेक्ट माय डिवाइस। आपके पास में प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। हम्म। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पीएटीएम, राइट। ओके, हम्म। मुझे वाटर को, मेरा वाटर, ये लेवल है मेरा वाटर का, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल। मुझे इसको, ओके, आई रिपीट माय क्वेश्चन। प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाटर है, ये है मेरा ग्राउंड लेवल, ठीक है। मुझे वाटर को 30 मीटर हाइट तक के लेके जाना है, मैं कैसे लेके जाऊंगा? प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या करोगे आप? पंप यूज करेंगे सर। क्या करेंगे? पंप यूज करेंगे। पंप यूज करेंगे। तो कैसे करोगे आप पंप को यूज? आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। हम्म। प्रेशर आपको इंक्रीज नहीं करना है, ये वाट आपको प्रेशर हम्म। इंक्रीज नहीं करना है। अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करेंगे हम लोग, अगर हमको प्रेशर ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है तो। और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो उसको नीचे लगाएंगे, उस वाटर टैंक, उस वाटर लेवल के नीचे में कहीं पे, और नीचे से फिर ऊपर उसको भेजा जाएगा। और दो प्राइमिंग वगैरह ना हो करके उसको नीचे में लगाएंगे, फिर उसके थ्रू अपन ऊपर भेजेंगे उसको। उसको कैलकुलेशन, उसके लिए पहले अपने को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। और जो ऊपर का जो पाइप होगा वो ऊपर के टैंक में जाकर के कनेक्ट होगा, नीचे नहीं, ताकि बैक फ्लो मत हो जाए। तो ऐसे ही सर। यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी? वो तो सर उसके लिए मुझे फ्लोरेट चाहिए होगा और हेड चाहिए होगा मुझे। हेड तो अपना 30 मीटर है, और जो हमने एक्स्ट्रा नीचे खींच के लिया होगा तो वो है अपना नेट कर देंगे, और फ्लोरेट चाहिए होगा क्योंकि रोजी HQ अपना पावर होता है पंप का। दे दिया आपको, फ्लोराइड भी दे दिया। अच्छा, तो ये अपना वाटर है तो रो 1000 × 2 इंटू हाइट, लेट से हम यहाँ पे पंप लगा रहे हैं कहीं पे, और ये
कुछ मीटर्स नीचे है, तो उस हाइट प्लस ये हाइट का अपन प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अपना पावर आ जाएगा। एंड एफिशिएंसी भी चाहिए होगा, हाँ, क्योंकि पूरा पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, एफिशिएंसी भी चाहिए होगा। 90% एफिशिएंसी, ठीक है, फाइन। आपको हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आपने पढ़ा है? यस सर। ओके, तो एच वर्सेस क्यू का आप थोड़ा कर्व बनाइए। ये अपना बैकवर्ड फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है ये। और एच वर्सेस क्यू ये अपना रिक्वायर्ड होगा, दिस इज गोइंग टू बी एच वर्सेस क्यू। और एन वर्सेस क्यू में ये होगा। और ये क्या है सर, ये इसमें पावर वर्सेस डिस्चार्ज। पावर वर्सेस डिस्चार्ज, ये ऐसा रहता है। चलिए, अब मैंने दो पंप्स को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, देयर आर टू पंप्स कनेक्ट। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, देयर आर टू पंप्स, ओके, एक पंप ये है और एक पंप ये है, ठीक। इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, और एक मेरा ये पंप है और एक मेरा ये पंप है। इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आई रिपीट माय क्वेश्चन, देयर आर टू पंप्स, ओके, the very first pumps they are connected in series, and another pump it is connected in parallel. So what is the use of connection in series and what is the use of connection of pumps in parallel? फ्लो रेट अगर बढ़ाना हो तो अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और अगर हेड बढ़ाना हो तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। वेरी गुड। तो ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि हेड वर्सेस क्यू का, जब मैं, आपने अभी इसका सिंगल पंप का बना दिया था फ्लो रेट कर्व, ओके, अब मुझे आप, जैसे हम्म, मैंने दो पंप को सीरीज में कनेक्ट किया, तो अब इसका आप एच वर्सेस क्यू बनाइए। ठीक है सर। थोड़ा यहाँ बड़ा ले लेता हूँ मैं, ये ले लीजिए, इधर कहीं पे बड़ा ये चाहिए ले था, लीजिए। हाँ। ठीक है, ये यहाँ से बनाता हूँ मैं, सीरीज में पहले बना देता हूँ। हाँ, ये अपना एच है और ये क्यू है, अरे खिसक गया। अरे आप बुक में बना दीजिए, मैं देख लूंगा बुक से भी। हाँ बुक में बना देता हूँ, ज्यादा जल्दी मिलेगा। बस हमारी ना करिए। ये बना है सर, पहले वाला पैरेलल का है, दूसरा वाला सीरीज का है। ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर ये सर दिख रहा है। थोड़ा इधर ये करो। पहला वाला जो है, हाँ, हाँ, पहला वाला। ये पैरेलल का है। इसमें हम लोग को शट ऑफ हेड दिखना पड़ता है। हाँ, जो जो दो कर्व है स्टार्टिंग के, वो अपने सिंगल सिंगल पंप के हैं, है ना। फिर उसके बाद जो उसके बाहर वाला कर्व है वो ओवरऑल दे रहा है। जब पहले वाले का शट ऑफ हेड पहुंचेगा तो वो अपने को फिर उस शट पंप ऑफ को हेड का बंद मतलब क्या करना होता है? पड़ेगा। पहले आप शट ऑफ हेड का मतलब बताइए, क्या होता है शट ऑफ हेड? शट ऑफ हेड मतलब सर, जो वेल्व होता है उसको आप पूरा क्लोज कर दीजिए हम्म। पंप का, तो अपना शट ऑफ हेड पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यही शट ऑफ हेड होता है। शट ऑफ हेड पहुंच गया मतलब अपने को बंद करना है पंप को। एक ड्यूटी पॉइंट करके एक ड्यूटी पॉइंट होता है, व्हाट इज द ड्यूटी पॉइंट इन द पंप, इन द ड्यूटी ग्राफ? पॉइंट, अच्छा ऑपरेटिंग पॉइंट टू बी एग्जैक्ट, ये यहाँ पे रहता है जहाँ पे सिस्टम कर्व और एच रिक्वायर्ड, जहाँ पे दोनों पे इंटरसेक्ट करता है, ये यहाँ पे। यस, वेरी गुड।
Fine. Okay, sir Rishabh, we will be concluding your mock interview. Okay, ओके सर। ठीक है। आप प्रिपेयर्ड तो हो मिस्टर ऋषभ मिश्रा, बस थोड़ा सा आई गेस कि चलिए आप पहले बताइए आपने क्या रियलाइज किया आज के मॉक में, उसके बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट और देखना पड़ेगा, जैसे अभी ये सब जो है ये किताबी ज्ञान में है। आपने स्टिनर पूछा, स्टिनर नहीं पता था मुझे, तो वो हाँ, मेरे को थोड़ा जा करके देखना पड़ेगा बाहर से, पंप कैसा है, कैसा दिखता है, ये सब चीजें क्या क्या उसमें चीजें हैं, ये सब मुझे डिस्टिलेशन और बाकी सब के लिए भी करना पड़ेगा। मैंने ये पहला 7 चीज क्लास है। में पढ़ाया हुआ है ये सब। सर मैं चयन क्लास में नहीं था, मैंने अभी परमाणु 2.0 ही ज्वाइन किया डायरेक्ट। आप परमाणु वाले, ठीक ठीक फाइन। तो फ्री भी था वो, आपने अटेंड करना चाहिए था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में आई गेस कि आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा है, प्लीज डू नॉट डू दिस, हम्म। ठीक है। हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। इट शोज दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, यू डोंट वांट दिस जॉब, और बस आप हम्म। मेरे साथ में मॉक दे रहे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट रियली it's not suit your character or it's not suit your suitability, okay? हाँ सर वो मेरे में है थोड़ा सा, पहले भी मैं इस चीज, मेन मॉक आता है जब, तो उस समय तक सब थोड़ा शांत हो जाता है, तो उसको अभी मैं इसी से ही रिड्यूस करना चालू कर दूंगा नेक्स्ट मॉक में, खत्म। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स का मुझे आइडिया नहीं है कि आप अदर सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर्ड है ना। बाकी पम्प्स का तो ज्ञान आपको पूरा है, मुझे पम्प्स का तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, फाइन। बाकी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्लूइड में, है ना। आई विल बी टेकिंग अ मैराथन ऑन फ्लूइड एंड थर्मो पे मैराथन लूंगा मैं, तो कोई भी डाउट्स होगा तो पूछ सकते हैं। बाकी एवरीथिंग वाज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, फाइन। ओके।